2026 यानी नए साल की शुरुआत होते ही जोहरान ममदानी ने नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने कुरान पर हाथ रखकर मेयर पद की शपथ ली। इसके साथ ही वह अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क सिटी के पहले भारतीय मूल के मुस्लिम मेयर बन गए हैं। अब तक न्यूयॉर्क सिटी के अधिकांश मेयर बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेते आ रहे थे, लेकिन कुरान पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले ममदानी पहले मेयर बन गए हैं। जिस कुरान पर ममदानी ने हाथ रखकर शपथ ली, उनमें से एक उनके दादा की थी, जबकि दूसरी जेब में रखी जाने वाली छोटी कुरान थी। यह पॉकेट साइज कुरान 18वीं सदी के अंत या 19वीं सदी की बताई जा रही है, जिसकी कई खासियतें हैं जिस पर आगे बातचीत करेंगे। इसके साथ ही हम ये भी आपको बताएंगे कि जोहरान ममदानी का भारत से क्या ताल्लुक है, उनका परिवार और उनकी पत्नी कौन है, और ट्रंप की तमाम कोशिशों के बावजूद वो यहां तक कैसे पहुंचे। साथ ही मेयर बनने के बाद न्यूयॉर्क के लिए वो क्या क्या नया काम करने वाले हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स, मैं हूं आपके साथ सिराज। जोहरान ममदानी ने 4 नवंबर को न्यूयॉर्क शहर के मेयर का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया था। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर बन गए हैं। अमेरिका में जैसे ही आधी रात को नया साल शुरू हुआ, उन्होंने कुरान पर हाथ रखकर मेयर पद की शपथ ली। इसके साथ ही वह न्यूयॉर्क के इतिहास में पहले ऐसे मेयर बन गए हैं जिन्होंने कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली। अब तक न्यूयॉर्क सिटी के ज्यादातर मेयर बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेते आ रहे थे। ममदानी सिर्फ 34 साल की उम्र में वह कई पीढ़ियों में सबसे कम उम्र के मेयर बन गए हैं। उनकी टीम ने 1 जनवरी को 2 अलग अलग शपथ ग्रहण समारोह तय किए थे। न्यूयॉर्क की पुरानी परंपरा के अनुसार नए मेयर का कार्यकाल नए साल की शुरुआत से ही शुरू होता है। इसी वजह से पहला शपथ ग्रहण समारोह आधी रात को आयोजित किया गया। बता दें कि यह समारोह एक पुराने सबवे स्टेशन पर हुआ, जो पूरी तरह निजी था। इसमें केवल ममदानी का परिवार मौजूद था और इस खास मौके पर उनकी पत्नी भी उनके साथ दिखी। 3, 2, 1. Good evening, everyone, and Happy New Year to all of you. And I can't think of a better way to usher in 2026 than to be amongst family and friends and to inaugurate the man who will bring about a new era of progress, promise, and prosperity for New York City. Zoran, I am so proud of what you have accomplished, and I'm filled with joy about what we will accomplish for our beloved city over the coming years. And so with that, let us begin. Please repeat after me and raise your right hand. I, Zoran Kwame Mamdani, Zohran Kwame Mamdani, do solemnly swear that I will support the Constitution of the United States, that I will support the Constitution of the United States, the Constitution of the State of New York, the Constitution of the State of New York, and the Charter of the City of New York, and the Charter of the City of New York, and that I will faithfully discharge the duties of the office of the Mayor of the City of New York, the Mayor of the City of New York, according to the best of my ability. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. Mayor. Mr. Mayor, congratulations. Thank you very much. Very happy to be here. Okay. It's such a please- pleasure to have you. Oops. Please sign your name. Yes. Thank you, sir. And may I now ask for your $9 filing You may fee? ask for my $9. There we go. This should be exact change. Excellent, Mr. Mayor. Thank you very much. And the last thing, would you please sign the book? Absolutely. Thank you, Ali. Thank you, Mr. Najmi. Thank you, Mayor. Okay, so you're going to sign the first line here. You're going to put today's date, your signature. Okay. Print or sign right here? Oh, could you do both? please? Okay. Thank you. This is City Gracie. Hall? City Hall? Okay.
Do I leave that for you? You leave that for me. Okay, it is now official. Thank you. Mr. Mayor, congratulations. Thank you so much. It's the honor of a lifetime. Thank you. Thank you, sir. Thank you, my friend. Thank you so much for everyone for being here. Happy New Year to New Yorkers, both inside this tunnel and above. And I cannot wait to see everyone tomorrow as we begin our term. न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने उन्हें मेयर पद की शपथ दिलाई। जिस सबवे स्टेशन पर ममदानी ने शपथ ली वह शहर की सबसे पुरानी अंडरग्राउंड रेल लाइन के शुरुआती स्टेशनों में से एक है। यह स्टेशन साल 1945 से बंद है और न्यूयॉर्क की पहली सबवे लाइन का पहला स्टेशन था। इसकी छत पीतल की लाइटें, पार्क की ओर खुलने वाले रोशनदान और हरे क्रीम रंग की टाइलें इसे खास बनाती है। इसके बाद दोपहर में सिटी हॉल के बाहर एक बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और शायद जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब ये कार्यक्रम आयोजित हो चुका हो। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जोहरान ममदानी अपने दोनों शपथ ग्रहण समारोहों में इस्लाम का पाक किताब कुरान शरीफ पर हाथ रखकर शपथ लेंगे। इस दौरान उनके 3 अलग-अलग कुरानों का इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है। बता दें कि आधी रात के शपथ ग्रहण समारोह में ममदानी ने अपने दादा की कुरान के साथ-साथ अश्वेत लेखक और इतिहासकार आर्टुरो शॉमबर्ग की कुरान का भी उपयोग किया। इसके अलावा न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी की ओर से लाई गई कुरान भी शामिल रही। अपने पहले और निजी शपथ ग्रहण समारोह में ममदानी ने 2 कुरानों पर हाथ रखकर शपथ ली। इनमें से एक उनके दादा की थी और दूसरी जेब में रखी जाने वाली छोटी कुरान थी। बताया जा रहा है कि यह पॉकेट साइज कुरान 18वीं सदी के अंत या 19वीं सदी की है। यह कुरान न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी के शॉमबर्ग सेंटर फॉर रिसर्च इन ब्लैक कल्चर के संग्रहण का हिस्सा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर जोहरान ममदानी है कौन और उनका भारत से क्या रिश्ता है, तो इसकी कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। जोहरान की मां कोई आम महिला नहीं है। उनकी मां मीरा नायर भारत की जानी मानी फिल्म निर्देशक हैं। उन्होंने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है। मीरा नायर का जन्म ओडिशा में हुआ था। उन्होंने सलाम बॉम्बे जैसी फिल्म बनाई जिसे ऑस्कर सम्मान मिला। इसके अलावा मानसून वेडिंग और द नेमसेक जैसी चर्चित फिल्मों में भी उन्होंने काम की, उन्हीं की देन है। उनकी फिल्मों में अक्सर भारतीय परिवारों की कहानियां, संघर्ष और विदेश में रहने वाले लोगों की तकलीफें दिखाई देती हैं। जोहरान की परवरिश में उनकी मां की कला और सोच का गहरा असर भी देखने को मिलता है। उनकी अपनी मां की फिल्म द नेमसेक में एक छोटा सा रोल भी जोहरान ममदानी ने निभाया था। राजनीति में आने से पहले जोहरान संगीत की दुनिया से भी जुड़े रहे और एक रैपर के रूप में भी सक्रिय थे। जोहरान के पिता महमूद ममदानी एक मशहूर राजनीतिक वैज्ञानिक और लेखक हैं। उन्हें दुनिया के टॉप 100 सार्वजनिक बुद्धिजीवियों में गिना जाता है। महमूद ममदानी का परिवार मूल रूप से गुजरात, भारत का रहने वाला था, जो बाद में व्यापार के सिलसिले में अफ्रीका के युगांडा चला गया। साल 1972 में जब युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन ने एशियाई समुदाय को देश छोड़ने का आदेश दिया, तब महमूद ममदानी का परिवार सब कुछ छोड़ने पर मजबूर हो गया। इसके बाद वे अमेरिका गए। बाद में महमूद ममदानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने। अपने पिता की सोच और पढ़ाई का असर जोहरान ममदानी पर भी पड़ा। इसी वजह से उन्हें उपनिवेशवाद, समानता और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों की गहरी समझ है। भले ही जोहरान अमेरिका में पले बड़े हो, लेकिन उनका भारत से रिश्ता कभी टूटा नहीं। बता दें दर्शकों कि उनके घर में भारतीय संस्कृति, भाषा और खाने का असर हमेशा बना रहा। उनका परिवार हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के मेल की एक खूबसूरत मिसाल है। उनकी मां हिंदू पृष्ठभूमि से है और पिता मुस्लिम, जिससे जोहरान को बचपन से ही एक धर्मनिरपेक्ष और उदार सोच मिली। जोहरान ममदानी की पत्नी का नाम एलिस फुलर है। बता दें दर्शकों कि जोहरान और एलिस की शादी साल 2023 में हुई थी। यह शादी इसलिए चर्चा में रही क्योंकि इसमें भारतीय, युगांडा और अमेरिकी संस्कृतियों का खूबसूरत संगम, मेल मिलाप देखने को मिला। एलिस फुलर सार्वजनिक जीवन या राजनीति में बहुत अधिक सक्रिय नहीं रहती, लेकिन जोहरान के राजनीतिक अभियानों, चुनाव प्रचारों और सामाजिक कार्यों के दौरान वह अक्सर उनके साथ नजर आती हैं। बता दें कि जोहरान अपनी सफलता का श्रेय हमेशा अपने परिवार और जीवन
साथी यानी पत्नी के सहयोग को देते हैं। उनका कहना है कि यही समर्थन उन्हें न्यूयॉर्क जैसे चुनौतीपूर्ण राजनीतिक मैदान में मजबूती से टिके रहने की ताकत देता है। अपने चुनाव अभियान के दौरान जोहरान ममदानी ने महंगाई और बढ़ते खर्चों को बड़ा मुद्दा बनाया था। उन्होंने न्यूयॉर्क को सस्ता और आम लोगों के लिए रहने लायक शहर बनाने का वादा किया है। उनके प्रमुख वादों में मुफ्त चाइल्ड केयर, मुफ्त बस सेवा, करीब 10 लाख घरों के लिए किराया फ्रीज करना, शहर की ओर से चलाए जाने वाले सस्ते किराना स्टोर शामिल थे। मेयर बनने के बाद ममदानी को सिर्फ बड़े नीतिगत फैसले ही नहीं लेने होंगे, बल्कि शहर की रोजमर्रा की समस्याओं से भी निपटना होगा। कचरा प्रबंधन, बर्फबारी, चूहों की समस्या, सबवे की देरी और टूटी सड़कें जैसे जो बड़े मुद्दे हैं उनकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी संभालनी होगी। इन समस्याओं के लिए अक्सर जनता मेयर को ही जिम्मेदार ठहराती है। हालांकि देखना होगा कि मेयर बनने के बाद जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के लिए क्या क्या काम करते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर दर्शकों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मिल्लत टाइम्स।